is nothing but the data which is in very huge size. It's called as big data. Then we discuss about sources of big data. There are different sources from which big data is generated daily on in a very huge amount. These are the different sources: social networking sites, e-commerce sites, telecom company, transportation company, share market. Then we discuss about three important V's of big data. Okay, that velocity, volume, and variety. These are the three important V's of big data. Velocity means the speed at which the big data is generated. Volume itself represents the data in very huge size, and variety means different forms of data. Okay, so big data satisfy these three properties. Big data is generated at very high speed, and if you go through the data of say Facebook, uh, it gets double every hour. ठीक है, सपोज आज अभी एक आवर में सपोज 10 GB का डेटा अगर फेसबुक थ्रू जनरेट हुआ तो नेक्स्ट आवर में 20 GB का डेटा जनरेट हो सकता है. नेक्स्ट आवर में 40 GB तक डेटा जनरेट हो सकता है. ठीक है, सो यू कैन जस्ट एनालाइज द स्पीड or the velocity of generating this big data. Okay, first important V of the big data is velocity. And continuously growing data is nothing but the big data. जो big data है वो continuously grow होते रहता है ना. जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स साइट तो आप जैसे जैसे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे उतना डेटा जनरेट होते जाएगा. ठीक है, पर सेकंड और the data is generated or increase exponentially with time. Such type of data is nothing but the big data. Second, V volume. The big data itself in the form of petabytes, zettabyte and yottabyte. So very huge amount of data. ठीक है, ये characteristics बोल सकते important say big data का volume itself is in a very huge amount. Variety represent it is available in different forms. In database only structured data we can store, but big data is a collection of structured as well as unstructured data. ठीक है, variety like log files, CCTV footage, textual information, numerical information in the form of images, audio, video, everything comes under this big data. Okay, so variety is there. Okay, so big data. So these are the three important V's of big data. So to this we discuss in last lecture. यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो चुका है ना. Now we'll discuss next topic. Today we'll discuss about types of digital data. Okay. As you are now dealing with the big data, you must know what are the different types of digital data are available. Okay. What actually digital data is. So what you can say? What is digital data? Anybody? First, tell me what is digital data. No problem. We are going to discuss types of digital data. First, tell me what actually digital data is. Am I audible, students? Data which is not in a physical form. Okay. Okay. What else? What you can say? What is digital data? Okay. So what are the data you store in machine like computer, laptop, your smartphone? Okay. All that we can call it as a digital data. Soft copy data. Like suppose if you have your 12th mark list in hard copy, what you can do, you can scan that mark list and you can save it in soft copy form in your machine, in your computer, in your smartphone, becomes a digital data. Okay, so digital data you can store in different forms, like whether it is a textual, in the form of text, in the form of numericals, images, audio, video, and so on. Okay, so digital data, what actually digital data is, it is defined as the data that is stored on digital format, maybe in the form of pictures, documents, or video. So what are the data available with us, whether it is textual, numerical, images, pictures, audio, video, all the such type of data we can store in term of digital format, in the form of zeros and ones in machines. That data become the digital data.
It is the data that is not physically but stored in digital form. है ना, फिजिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो लॉजिकली वी कैन से कि लॉजिकली इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी इन मशीन. ठीक है, फिजिकली हमारे पास मार्कशीट है, सपोज 12 का, आपके पास 12 का मार्कशीट है, लेकिन लॉजिकली आप और यू कैन स्टोर दैट हार्ड कॉपी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी इन योर मशीन. ठीक है, दैट सॉफ्ट कॉपी बिकम द डिजिटल डेटा. It is the data that is not physically but stored in digital form. Digital data can be classified into three forms. So there are three types, three forms of digital data: structured data, unstructured data, and semi-structured data. Okay, these are the three forms of digital data. डिजिटल डेटा स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, डिजिटल डेटा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, डिजिटल डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है. लेट डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड डिजिटल सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. ठीक है, सो फर्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड डेटा. So the structured data comes from databases such as Access, SQL, as well as spreadsheets such as Excel. The data available in these tools are in the form of, say, structured data. Okay, the data having some particular structure. In simple way, we can call it as a structured data. Like suppose when you store data in term of database, you are supposed to create the database table first. Unless and until you create a database table, you cannot store the data in the database. So you are creating the table means you are deciding the structure of the data, what you are going to store in the database. ठीक है ना, सपोज अगर मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन अगर मुझे सपोज डेटाबेस में स्टोर करना है, से एसक्यूएल थ्रू मुझे स्टोर करना है, एक्सेस थ्रू स्टोर करना है, सपोज एक्सेल मुझे स्टोर करना है स्टूडेंट का डेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, है ना. लाइक इन डेटाबेसेस यू क्रिएट टेबल फर्स्ट by using create table command, create table student, and then in bracket you decide कि in term of what attributes you are going to store the information in the database. स्टूडेंट का आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, रोल नंबर स्टोर करना है, उसके बाद नेम, ठीक है, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर, मार्क्स ऑफ सेकंड ईयर, वो डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या इंफॉर्मेशन स्टूडेंट का स्टोर करना है. सो अकॉर्डिंगली फर्स्ट यू आर सपोज टू डिसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द रिकॉर्ड. Means you're supposed to design the structure of the table. जब तक आप टेबल क्रिएट नहीं करोगे तब तक आप उस टेबल में रिकॉर्ड नहीं स्टोर कर पाओगे. तो ऐसे हम करो कि अगर मैंने टेबल का स्ट्रक्चर ऐसे डिसाइड किया कि उसमें तीन ही कॉलम है, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. स्टूडेंट का मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इन टर्म ऑफ दिस रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. तो मुझे पहले क्रिएट टेबल करना पड़ेगा. क्रिएट टेबल स्टूडेंट इन ब्रैकेट रोल नंबर, प्राइमरी की, ठीक है, नेम, टेक्स्ट, मार्क्स, इंटीजर, व्हाटएवर. ठीक है, एक बार एक टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट किया, बाद में मैं उसमें कितने भी रिकॉर्ड स्टूडेंट के रिकॉर्ड स्टोर कर सकता हूँ, लेकिन हर एक रिकॉर्ड जो है एक स्ट्रक्चर फॉलो करेगा कि हर एक रिकॉर्ड का पहला जो वैल्यू है वो रोल नंबर ही रहेगा, हर एक रिकॉर्ड का दूसरा वैल्यू नेम ही रहेगा, हर रिकॉर्ड का तीसरा वैल्यू मार्क्स ही रहेगा, एंड सो ऑन. ठीक है, सो वो जो रिकॉर्ड मैंने स्टोर किया स्टूडेंट का फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एंड वी कैन कॉल इट दैट डेटा एज अ स्ट्रक्चर डेटा. ठीक है, the structured data comes from databases such as Access, SQL, as well as spreadsheet such as Excel are all in the structure format. By structured data we mean data that can be processed, stored and retrieved in fixed format. ठीक है, so what is the data later you can store in the databases in terms of tables, all the records will follow the same fixed structure, fixed format. ठीक है, and once you store number of records in the student table, later you can process that information. You can retrieve any student information, you can retrieve some part of the record from the student table and so on by executing some sort of queries. Query works on the structured data. जब आप query लिखते हो, query जब execute होता है तो वो structured data के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी आपको इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है वो इजीली आप बाद में रिट्राइव कर सकते हैं. ठीक है, efficiently and effectively you can retrieve any information from database table by executing single line query. तो ये पॉसिबल कि वो इफिशिएंट इतना इफेक्टिवली क्यों हो गया, क्योंकि जो सारा डेटा अवेलेबल डेटाबेस में वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है. ठीक है, हर एक डेटा जो भी अवेलेबल है, हर एक डेटा का एक फिक्स फॉर्मेट है. ठीक है, अगर स्टूडेंट टेबल में अगर 1000 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन है तो हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, जो स्ट्रक्चर है वो फिक्स्ड है. ठीक है, सो at any time you can perform any type of operation on the database table. You can retrieve roll number of a particular students, you can retrieve marks of a particular student, you can
display several records. ठीक है, so depends on कि what type of operation you want to perform later on the database table. ठीक है, तो ये efficiently और effectively आप परफॉर्म कर सकते हो और वो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं प्रॉपरली, क्योंकि ये सारे जो डेटा रिकॉर्ड्स है वो फिक्स फॉर्मेट में है, स्ट्रक्चर डेटा है. स्ट्रक्चर डेटा रेफर्स टू हाईली ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी readily and seamlessly stored and accessed from a database by simple search engine algorithms. So once you store the data in the database, later you can perform any operation on the database table or on those records. ठीक है, फॉर इंस्टेंस यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल दिखाई स्लाइड दिया है स्लाइड पे. फॉर इंस्टेंस द एम्प्लॉय टेबल इन अ कंपनी डेटाबेस विल बी स्ट्रक्चर्ड एज एम्प्लॉय डिटेल्स, देयर जॉब पोजीशन, देयर सैलरी एक्सेट्रा विल बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. ठीक है, तो देखो ये स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल है. एज्यूम करो कि एक एम्प्लॉय नाम का टेबल क्रिएट किया है डेटाबेस में. ठीक है, ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है. तो नेम ऑफ द टेबल सपोज एम्प्लॉय है, तो पहला कॉलम में आईडी, सेकंड कॉलम में नेम, थर्ड कॉलम में एज, फोर्थ कॉलम में डिग्री. तो इस डेटाबेस टेबल में 5 रिकॉर्ड स्टोर किया है. ठीक है, यू कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिस टेबल, लेकिन इफ यू गो थ्रू ईच एंड एवरी यूनिक रिकॉर्ड फॉलो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, कि हर एक रिकॉर्ड में पहला जो वैल्यू है वो आईडी का है, सेकंड वैल्यू नेम ऑफ द एम्प्लॉय है, third value age of the employee, and fourth value is degree of that particular employee. Like this, later once you decide the structure, once you create the structure for employee, later any number of records you can store in that. Okay, so whatever the data becomes or you have collected here in this table, we can call that data as the structured data. हर एक record को एक proper structure है properly. ठीक है, so once you store the data in structured format, later it becomes very easy to perform operation on that structured data. Easily and efficiently you can perform that operation. चाहे आपको ऑपरेशन मैन्युअली करना हो या फिर क्वेरी एग्जीक्यूट करके करना हो, इजीली आप कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ये एक क्वेश्चन अगर पूछा कि रॉबर्ट का एज कितना है, तो आप इजीली बता पाओगे, है ना, कितना रॉबर्ट का एज क्या है. द एज ऑफ द रॉबर्ट 51. ठीक है, अभी देखो मेरे पास 5 एम्प्लॉय का यहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर करके रखा है. ठीक है, और इस स्ट्रक्चर डेटा का यूज करके मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि रॉबर्ट का एज कितना है, तो आपने इजीली मुझे बोला है कि उसका एज 51 है. तो कितना इजी आपको हो गया फाइंड करना कि रॉबर्ट का एज कितना है, क्योंकि आपने सिर्फ रॉबर्ट का ही रिकॉर्ड को स्कैन किया है. वो रिकॉर्ड स्कैन करने के बाद आपने एज वाले कॉलम का वैल्यू देखा, इजीली यू टेल मी कि द एज ऑफ द रॉबर्ट इज 51. तो ये पॉसिबल क्यों है, इतना इजीली इफिशिएंटली आपने आंसर दिया, क्योंकि ये जो डेटा है वो स्ट्रक्चर डेटा है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में प्रॉपरली स्टोर किया है, तो ये इजीली हो गया आपको फाइंड करना. ठीक है, नो प्रॉब्लम, आपको एक्चुअली मैन्युअली फाइंड नहीं करना है. इफ मोर रिकॉर्ड्स आर देयर, ठीक है, सपोज 1 मिलियन अगर रिकॉर्ड होते हैं इस टेबल में और मैंने आपको अगर क्वेश्चन पूछा होता कि रॉबर्ट का एज कितना है, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको हर एक रिकॉर्ड स्कैन करके वो, तो इस वजह से आपको क्वेरी फायर करके भी आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं अगर ज्यादा रिकॉर्ड है डेटाबेस टेबल में. सो इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द रिकॉर्ड मैन्युअली, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट अ सिंगल लाइन क्वेरी. अगर मैंने एक सिंगल लाइन क्वेरी लिखा होता कि सिलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू रॉबर्ट, इजीली विद इन अ सेकंड आई विल गेट द एज ऑफ द रॉबर्ट. लेकिन देखो क्वेरी फायर करना लिखना भी कितना इजीली हो गया, क्योंकि ये डेटा जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर है. अगर ये प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर नहीं किया होता रिकॉर्ड, तो ये क्वेरी लिखना भी पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, ये रिकॉर्ड जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में स्टोर किया है, दैट्स व्हाई इट्स बिकम इजी टू राइट द क्वेरी, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, टू फाइंड एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टेबल, है ना. रॉबर्ट का एज अगर मुझे फाइंड करना है टेबल में, तो कितना सिंपल सा क्वेरी में फायर कर सकता हूँ ना. सिलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय जहाँ पे टेबल का नाम है, सिलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू रॉबर्ट. सो होप यू अंडरस्टूड कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है. स्ट्रक्चर डेटा क्या है कि दैट डेटा follow some fixed structure. To summarize structure data, first it consists of fully described data sets. ठीक है,
So structured data consists of fully described data sets. So from this structured data, I can just describe the name of the employee whose ID is John, है ना? And the degree of the John is say BSc, and the age of the John is 18, something like that I can describe from the structured data. So structured data consists of fully described data set, is placed neatly in rows and columns. Okay, so all the information of structured data is arranged across rows and columns properly, neatly. ठीक है, तो देखो यहाँ पे रोज मींस रिकॉर्ड्स ऑफ द डेटाबेस टेबल, और कॉलम क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट. लेकिन यहाँ पे अगर एम्प्लॉय हमने अगर ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है तो कौन कौन सी इस ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो आईडी ऑफ द एम्प्लॉय, नेम ऑफ द एम्प्लॉय, एज ऑफ द एम्प्लॉय, डिग्री ऑफ द एम्प्लॉय. इन टर्म ऑफ दिस प्रॉपर्टी द information about several employees are maintained in this database table. Okay, so here all the information is neatly properly arranged across rows and columns in a specific structure data. Okay, uh, goes into records, and hence the database is regulated by a well defined structure, can be indexed easily by the DBS itself or manually. Okay, indexing can be implemented easily on the structure data. Index का concept क्या है? So actually there are different types of indexes like dense index and sparse index. So the concept of index is actually used to search the information quickly from the database table. ठीक है, तो देखो अगर एक डेटाबेस टेबल में अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है, तो अगर आपने एक क्वेरी लिखा है, आपको एक पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना है, सपोज रॉबर्ट का एज आपको सर्च करना है, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है डेटाबेस टेबल में, तो सिंपल सा एक आपने अगर सिंगल लाइन क्वेरी फायर किया, विद इन अ सेकंड यू विल गेट द रिजल्ट ऑन द स्क्रीन. तो यहाँ पे एक्चुअली जब आप क्वेरी लिखते हो, सिंगल क्वेरी लिखते हो, दैट सिंगल लाइन क्वेरी इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू से प्रोग्राम, है ना? अभी ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में आपने ऑलरेडी सीखा स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का यूज करके आपने क्या किया कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया, स्टूडेंट के रिकॉर्ड, स्टूडेंट एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, उसमें से हम कुछ इंफॉर्मेशन रिट्राइव कर रहे थे, सर्च कर रहे थे. तो कि आपको वो याद आ रहा है स्ट्रक्चर का कंसेप्ट. सी लैंग्वेज में जब हमने प्रोग्राम लिखा था, है ना, स्ट्रक्चर थ्रू हमने क्या कहते हैं स्टूडेंट का स्ट्रक्चर क्रिएट किया. स्टूडेंट स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, सेवल स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सी प्रोग्राम थ्रू हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किया था, है ना. एक वेरिएबल में बहुत सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर किया, उसके बाद आपने वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड सर्च भी किया था, रोल नंबर वाइज या तो फिर नेम वाइज या तो फिर, ठीक है. So actually when query is executed, that query is actually converted into program, some sort of program, that program that get executed, and accordingly that information is retrieved, which is presented as output on the screen. So when we want to search the record, the concept of index is used. Indexing is used for searching the record much faster. Okay, so implementing such type of indexes on structured data becomes very easy task. Okay, index implementing the concept of index becomes easy in case of structured data. So we'll get benefits, all these benefits for structured data. Okay, advantages of structured data: it is easy to work with structured data. Easily you can work with the structured data. Update and delete, updating and delete operation become very easy to perform the structured data, है ना. structured data अगर है कलेक्ट किया हुआ, तो अगर आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर अपडेट करना है, एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड आपको डिलीट करना है, तो आप इजीली ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, और अगर मुझे रॉबर्ट का एज अगर मॉडिफाई करना है, 51 का मुझे यहाँ पे 55 करना है, तो इजीली मैं अपडेट क्वेरी फायर करके वो रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ, है ना. अपडेट क्वेरी मुझे फायर करना पड़ेगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट age is equal to 55 where name is equal to Robert, something like that. I am supposed to write the query to in order to update this record, and at any time any record you can update. Structured data अगर आपके पास है, अवेलेबल है, फिक्स फॉर्मेट में अगर आपने रिकॉर्ड स्टोर करके रखा है, तो उसमें से आपको कौन सा भी रिकॉर्ड, पर्टिकुलर रिकॉर्ड अगर आपको अपडेट करना है, आप इजीली उसको अपडेट कर सकते हो बाय राइटिंग अ सिंगल लाइन क्वेरी. ठीक है, अगर मुझे रॉबर्ट का रिकॉर्ड डिलीट करना है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो मैं डिलीट क्वेरी फाइल कर सकता हूँ, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इज इक्वल टू रॉबर्ट, हो गया डिलीट रिकॉर्ड.
So you can update any record at any time easily. If the data whatever available is in structure format, you can delete any record easily. Then retrieving information again is very easy to retrieve any information from the structured data. A well-defined structure helps in easy retrieval of data. जैसे कि मैंने आपको मैन्युअली क्वेश्चन पूछा था कि रॉबर्ट का एज कितना है, तो आपने इजीली मुझे बोला था कि रॉबर्ट का एज 51 है करके, तो इजीली आपने उसको रिट्राइव किया इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इजीली आप उसको सर्च कर सकते हैं, क्योंकि डेटा को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, तो आप स्ट्रक्चर वाइज स्कैन करके उसको आप इजीली उसको रिट्राइव कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, देन इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग, डेटा कैन बी इंडेक्स बेस्ड not on a text string but also on other attributes. By using any attribute, any data you can search at any time by implementing the concept of indexing and searching. Scalability is not generally an issue with the increase in data. So structured data is scalable. We can say structured data is scalable means we can increase any number of records, we can store any number of records in the database table, कुछ भी इशू नहीं होगा। अगर आप देखो अभी एम्प्लॉय टेबल में अभी फास्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, आई कैन स्टोर मोर रिकॉर्ड्स, 100 रिकॉर्ड्स तक मैं स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, कल में और 10,000 रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, परसों में और 10,000 रिकॉर्ड उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। स्केलेबल मींस स्केल जो है उस डेटाबेस टेबल का इंक्रीज होते जाएगा। एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू कैन स्टोर, आप स्टोर करते जाओ रिकॉर्ड्स, को लिमिट नहीं है। ठीक है, इट डिपेंड्स कि कितना फ्री स्पेस आपके हार्ड डिस्क में है, उतने रिकॉर्ड आप स्टोर करते जाओ, स्टोर होते जाएंगे रिकॉर्ड्स डेटाबेस टेबल में। स्केलेबल, so scalability is not generally issue with the structured data. ठीक है, scalable means you can increase number of records, you can at any time you can increase the number of records in the database table, कुछ भी इशू नहीं होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, स्टोर करते जाओ रिकॉर्ड्स, एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यू कैन स्टोर, इंक्रीज होते जाएगा सिर्फ साइज टेबल का, मेमोरी यूटिलाइज होगा ज्यादा। ठीक है, तो जब तक आपके हार्ड डिस्क में फ्री स्पेस है, आप तब तक आप वो रिकॉर्ड स्टोर करते जा सकते हो डेटाबेस टेबल के अंदर। And security, so we can easily provide security to structured data by some means of security mechanism. Easily security can be provided to structured data. जैसे कि अभी ये database table है, तो there are different mechanisms are available. तो I think आपने फर्स्ट ईयर में हाँ DBMS और RDBMS तो सीखा होगा ये security mechanisms कि how you can provide security to the database table. So there is different ways are available, there are different mechanisms are used to provide security to the database table, so easily it becomes easy to provide security to such type of structured data, so that no unauthorized user can access the data from the database table. ठीक है, unauthorized user जो है वो डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता है ना। सिक्योरिटी का कंसेप्ट वही है कि जो ऑथोराइज पर्सन है उसको ही डेटा एक्सेस होना चाहिए। तो there are different mechanisms are used that can be easily implemented on structured data to provide security, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो बैंक में, अगर आप बैंक में तो बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, कैशियर होता है और बहुत बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन नॉट ऑल द एम्प्लॉयज कैन व्यू द कस्टमर इंफॉर्मेशन एट एनी टाइम। सारे बैंक के एम्प्लॉय है, सपोज बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं आज, है ना, कि बहुत सारे कैशियर, हर एक को यूजर नेम पासवर्ड दिया है, कैशियर है जो डेली अदर ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता है, वो मींस बहुत सारे एम्प्लॉयज है, लेकिन सारे एम्प्लॉय सारा कस्टमर का डेटा नहीं देख सकता, क्योंकि वो सिक्योरिटी सो दिस वन ऑफ द मैकेनिज्म दैट कि who can retrieve what type of information from the database table, that is also decided as a security mechanism. अगर कैशियर है तो वो अकाउंट में एटलीस्ट बैलेंस दे सकता है ना, कितना बैलेंस है कितना। ठीक है, लेकिन जो पासबुक वगैरह अपडेट करता है, ऐसा एक एम्प्लॉय को टास्क दिया है कि जो पासबुक सिर्फ अपडेट करने का अगर उसको टास्क दिया है, तो वो कभी भी कौन से भी एम्प्लॉय का डेटा व्यू नहीं कर सकता उसकी मशीन थ्रू। वो सिर्फ कमांड दे सकता है प्रिंटर को कि इसका पासबुक प्रिंट हो जाए, लेकिन वो कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं देख सकता डेटाबेस टेबल से, हर एक कस्टमर का कस्टमर आईडी क्या, उसका बैलेंस कितना है वगैरह वगैरह कुछ नहीं। सो यहाँ पे डिसाइड किया कि कौन सा एम्प्लॉय क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है डेटाबेस टेबल के ऊपर। सो कुछ इस तरह से ये वे हो गया सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ mechanisms are used to provide security to the structured data, so that unauthorized user cannot access the data from the database. So what I want to say here is implementing security on structured data is somewhat easy.
ठीक है, easily we can implement security concepts on the structured data. All these are the advantages of the structured data. ठीक है, समझ में आ गया structured data क्या होता है? Any doubt in this? Students, any doubt? No, sir. ओके, सो एक सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, तो डिजिटल डेटा होते हैं तीन टाइप के, ठीक है, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डेटा का एग्जांपल क्या है? सिंपली एक डेटाबेस आपके सामने आपको माइंड में लाना है, डेटाबेस टेबल। तो डेटाबेस टेबल जो है वो स्ट्रक्चर डेटा ही है, बिकॉज एवरी इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड इज मेंटेन अकॉर्डिंग टू सम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। डेटा को स्ट्रक्चर्ड होता है प्रॉपर। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेट में हमने अगर डेटा स्टोर किया तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले? तो इतने बेनिफिट है स्ट्रक्चर डेटा के, ये बेनिफिट सबको मिलने वाला है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, फिक्स फॉर्मेट में अगर हमने डेटा स्टोर किया तो हम इजीली स्टोर कर सकते हैं, इजीली अपडेट डिलीट कर सकते हैं, इजीली रिट्राइव कर सकते हैं, इजीली इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग का कंसेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसको इजीली स्केलेबल होता है डेटा, इजीली सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं एंड सो ऑन। The next is unstructured data. देखो बिग डेटा जो होता है ना, बिग डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो उसमें से आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा तो पता चल गया है स्ट्रक्चर्ड क्या है। अभी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, सो अनस्ट्रक्चर्ड मींस व्हाट? ऐसा डेटा जिसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, दैट इज नथिंग बट द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। द डेटा which does not follow a specific structure, unstructured data. So unstructured data refers to the data that lacks any specific form or structure whatever. ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्म भी नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं है, स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में नहीं है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। This makes it very difficult and time consuming to process and analyze unstructured data. So डेटा को प्रॉपर डेटा प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, तो फिर हमारी दिक्कतें बढ़ने वाली, क्योंकि वो हम फिर इजीली उसको स्टोर नहीं कर सकते, इजीली उसको अपडेट नहीं कर सकते, इजीली उसको डिलीट नहीं कर सकते। सो फिर बाद में तो सारी दिक्कतें बढ़ने वाली अगर डेटा अगर अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है तो, ठीक है। No problem कि we can process unstructured data, but it is difficult, somewhat difficult process. It is time consuming process. जितने फास्ट हम स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उतना ही टाइम ज्यादा लगेगा स्ट्रक्चर डेटा के ऊपर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे कंस्ट्रक्चर डेटा है, वही डेटा जो हमने डेटाबेस टेबल में देखा था वही डेटा है यहाँ पर, यही डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट में स्टोर किया है। तो क्या आप मुझे बोल सकते हो रॉबर्ट का एज कितना है? इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्कैन करने के बाद रॉबर्ट का एज कितना है? बोलो। 51। देखो कितना टाइम लगा, पहले मैंने आपको पूछा था तो बहुत जल्दी आंसर आया था, अभी सेम आंसर होते हुए भी वो टाइम लगा कि रॉबर्ट का एज 51 है करके। तो टाइम क्यों लगा ज्यादा? क्योंकि टाइम कंज्यूम हो गया प्रोसेस। अभी ये जो डेटा है अभी स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं है, प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इस डेटा तो है यहाँ पे, कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखा है, लेकिन ये जो भी डेटा यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है उसको फिक्स फॉर्मेट में नहीं है, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स सम एक्स्ट्रा टाइम टू गिव द आंसर टू फाइंड द एज ऑफ द रॉबर्ट। ठीक है, डेविड का कौन सा डिग्री है? डेविड जो है जो एम्प्लॉय उसका डिग्री क्या है? तो वो भी अगर आपको स्कैन करना है, फाइंड करना है तो टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा यहाँ पे पैराग्राफ का पैराग्राफ रीड करना पड़ेगा। लेकिन वही आप यहाँ पे डेविड का अगर डिग्री ढूंढना है तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं, पीएचडी किया है उसने, डेविड का डिग्री क्या है? पीएचडी है, ठीक है। लेकिन वही आंसर इसी डेटा में दिया है तो आपको वो पूरा स्कैन करना पड़ेगा कि कहाँ पे दिया है डिग्री डेविड का। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इजीली आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को। हाँ, ये जो डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, स्लाइड पे दिया हुआ। So this makes it very difficult and time consuming to process and analyze unstructured data. It is the one which cannot be stored in the form of rows and columns as in database. So unstructured data को हम डेटाबेस में स्टोर नहीं कर सकते। अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर किया तो उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर ही होगा, उसको स्ट्रक्चर डेटा बोलेंगे, है ना, क्योंकि डेटाबेस अलाउज टू स्टोर द डेटा इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। क्योंकि डेटा कोई सा भी डेटा स्टोर करने से पहले डेटाबेस में पहले आपको उसका स्ट्रक्चर डिसाइड करना पड़ेगा। मींस बाय क्रिएटिंग टेबल्स, आप टेबल क्रिएट कर रहे हो मींस डेटा का स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो। डेटा का स्ट्रक्चर जब तक आप डिसाइड नहीं करते तब तक डेटा स्टोर ही नहीं कर सकते डेटाबेस के अंदर।
है ना. तो whatever the data will store in the database, it will be always in structured format. So unstructured data हम database में नहीं store कर सकते. ठीक है. So means across rows and columns we cannot store the unstructured data across rows and columns. Randomly we are supposed to type the data in text file, in notepad, or say some through some editor we can just type and store the data randomly. उसको हम बोलेंगे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. और जो भी सारे वीडियो फाइल्स है, वीडियो फाइल को क्या प्रॉपर स्ट्रक्चर है. वीडियो फाइल का डेटा कैसे होता है. ठीक है. वीडियो फाइल ना, अगर आपने कुछ वीडियो इंफॉर्मेशन अगर स्टोर किया कंप्यूटर में तो उसका स्ट्रक्चर क्या है. नो स्ट्रक्चर. वीडियो फाइल का कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं है. ऑडियो फाइल है, अगर आपने कुछ सॉन्ग्स वगैरह स्टोर किया, अगेन वो भी डेटा ही है. ऑडियो डेटा वो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही है. इमेजेस, आपने मोबाइल में पिक्चर क्लिक किए, फोटोज क्लिक किया आपने, स्टेटस अपलोड किया आपने, तो कौन सा डेटा हो गया. अनस्ट्रक्चर्ड. क्योंकि हर एक इमेजेस को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है. जैसे डेटाबेस टेबल के रिकॉर्ड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो all this comes under this unstructured data. All this type of information comes under this unstructured data. ठीक है. If you store the information in text file without rows and columns, ठीक है, रैंडमली अगर आपने कुछ टेक्स्ट फाइल में टाइप किया है, सपोज नोटपैड में, वर्ड में, ठीक है, वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया. आप वीडियो फाइल्स, इमेजेस, ऑडियो, वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, चार्ट्स, रिपोर्ट्स, etc. are example of unstructured data. तो if anybody asks you give me the example of unstructured data, तो आपको ये इतना एग्जांपल दे सकते कि any video file is unstructured data. Any images, pictures, jpg file, gif file is unstructured data. ऑडियो फाइल, mp3 डॉट वेव, है ना, जो साउंड से रिलेटेड जो फाइल है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंडर आता है. वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड में अगर आपने कुछ टाइप किया है, सपोज आपका बायोडाटा टाइप किया है, आपने कुछ एप्लीकेशन लेटर टाइप किया है, कुछ एम्प्लॉय के रिकॉर्ड अगर टाइप किए वर्ड फाइल में, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बन जाएगा. पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, ये जो स्लाइड शो में अभी किया है मैंने, ये भी एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ही है. क्योंकि डेटा तो है, हर एक स्लाइड में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखा है, लेकिन इसको एक हर एक स्लाइड को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है. चार्ट्स, है ना, डिफरेंट ग्राफिकल चार्ट्स यू कैन इंसर्ट थ्रू एक्सेल, रिपोर्ट्स यू कैन जनरेट. ठीक है. ऑल दिस कम्स अंडर द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. So challenges faced while storing unstructured data. So what are the different challenges we will face while storing the unstructured data? ठीक है. So these are the challenges required for processing the unstructured data. So first is storage space. So it is difficult to store and manage unstructured data. ठीक है. डिफिकल्ट है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करना डिफिकल्ट है. जितना इजीली हम रिकॉर्ड डेटाबेस टेबल में स्टोर कर सकते हैं, उतना ही डिफिकल्ट होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करना मेमोरी में. ठीक है. बाय यूजिंग सिंपल इंसर्ट इनटू कमांड यू कैन स्टोर रिकॉर्ड इन डेटाबेस टेबल. एक नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट कर सकते हैं. इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, एम्प्लॉय आईडी दो, एम्प्लॉय का नाम दो, डिग्री दो, हो गया रिकॉर्ड इंसर्ट. इजीली आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं रिकॉर्ड को, लेकिन और रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हो. लेकिन वही ऑपरेशन डिफिकल्ट है इन केस ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. इट इज डिफिकल्ट टू स्टोर एंड मैनेज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तो कितना साइज लगेगा, कितना फ्री स्पेस लगेगा, कितने साइज तक वो ग्रो हो सकता है, वो एनालाइज करना, ये उसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है. ठीक है. A lot of space is required to store such data. It is difficult to store images, videos, audios, and etc. है ना. ये जो वीडियो फाइल्स है, वीडियो फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, इमेजेस, तो अगर आपको स्टोर करना है तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है डेटा स्टोर करने के लिए. डिफिकल्टी आपको हो सकता है डेटा स्टोर करने के लिए, बिकॉज अगर आपके पास स्पेस नहीं है उतना, तो अगर आपको डेटा ज्यादा स्टोर करना है तो, है ना, सपोज आपके पास 100 MB का फ्री स्पेस है, तो 100 MB का फ्री स्पेस है, तो और आपको अगर 150 MB का वीडियो फाइल स्टोर करना है तो नहीं कर सकते ना. जितना स्पेस है ऐसा नहीं कि थोड़ा पार्ट में हम स्टोर कर सके एक वीडियो फाइल, तो उसको आपको कट, बाद में आप उसको कट वगैरह कर सकते डेटा को. लेकिन डेटाबेस टेबल में जितना फ्री स्पेस है, जब तक फ्री स्पेस फुल नहीं होता तब तक आप रिकॉर्ड स्टोर करते जा सकते हो.
लेकिन वो दिक्कत कहाँ पे आएगी आपको, अगर आपका डेटा जाता है बहुत, एक एक फाइल का साइज अगर ज्यादा है, हो सकता है वीडियो फाइल के लिए एक एक फाइल का साइज एमबीज में हो सकता है, जीबीज में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द रेजोल्यूशन एंड टाइम। तो एक पूरा का पूरा फाइल अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, तो उसका आपको स्टोरेज कैपेसिटी चेक करना पड़ेगा कितना है, कितना अवेलेबल है, कि फिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, है ना। 2 जीबी का फाइल आपको ट्रांसफर करना है दूसरी मशीन में, और दूसरी मशीन में सिर्फ 1 जीबी का ही फाइल अगर मेमोरी अगर अवेलेबल है, तो वो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी दिक्कतें आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को मैनेज करने में हो सकती है। स्टोरेज स्पेस, then scalability. Second is scalability. As data grows, scalability becomes an issue, and the cost of storing such data grows. Okay, so here we can say that the unstructured data is not scalable, or the cost of increasing or growing the unstructured data may be more as compared to structured data, है ना। स्ट्रक्चर्ड डेटा है तो हम उसको इजीली इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन वही डेटा अगर अनस्ट्रक्चर्ड है तो स्केलेबिलिटी का इशू हो सकता है इन केस ऑफ द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसे जैसे आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इंक्रीज करते जाओगे, तो देयर मे बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम यू मे हैव टू फेस लेटर। Retrieving information, even if unstructured data is stored, it is difficult to retrieve and recover from it. ठीक है सर, सारा अभी जो जो ऑपरेशन सारे इजी है इन केस ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, वही डिफिकल्ट हो रही है यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के बारे में। ठीक है, इजीली यू कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी, security mechanism, implementing security mechanism is somewhat different, difficult as in case of unstructured data. No problem, you can implement security mechanism on unstructured data, but what are the security mechanisms are required to implement? It is very difficult to say, very difficult to implement it. अपडेट एंड डिलीट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को अगर आपको अपडेट करना है, डिफिकल्ट है ना। जैसे कि अगर मुझे सपोज यहाँ पे डेविड का डिग्री मुझे अपडेट करना है, इस क्वेश्चन दिया है मुझे कि डेविड का डिग्री है वो अपडेट कर दो, चेंज कर दो, उसको बीएससी कर दो, तो आपको पहले पूरा रिकॉर्ड स्कैन करना पड़ेगा कि डेविड का डिग्री यहाँ पे कहाँ पे दिया है और कौन सा दिया है, उसको बाद में आपको अपडेट करना पड़ेगा बीएससी से, है ना। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूँ कि देखो एक सिंपल सा अपडेट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लेकिन वो कितना डिफिकल्ट हो सकता है यहाँ पर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर। डिलीट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि अगर एक प्रॉपर डेविड का रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है इसमें से, तो कैसे डिलीट करें, क्योंकि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है। ठीक है, रैंडमली पैराग्राफ टाइप किया है, तो कौन सा पार्ट डिलीट करे यहाँ पे। अगर डेविड का रिकॉर्ड मुझे अगर डिलीट करना है, तो मैं क्या इस डेटा से क्या क्या डिलीट करना चाहिए, मुझे डिफिकल्ट हो सकता है मेरे लिए ना। बाय मिस्टेक लेकर मेरा कुछ ऐसा वर्ड जो कि दूसरे एम्प्लॉय से रिलेटेड है, वो अगर डिलीट हो गया, तो फिर बाद में डेटा इंटीग्रिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, indexing and searching. Indexing unstructured data is difficult as the structure is not clear and attributes are not predefined. So everything becomes very difficult in case of unstructured data. ठीक है, अगर डेटा प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं है, तो ये सारे चैलेंजेस हमको बाद में फेस करना पड़ेगा कि उसको स्टोर कैसे करना है। स्टोरेज का इश्यू आपको आ सकता है, स्केलेबिलिटी का इश्यू आ सकता है, उसको इंक्रीज कैसे करें। अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, अगर उसको ग्रो इंक्रीज करना है, तो कैसे उसको इंक्रीज करें, क्या क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। Retrieving information is difficult, providing security to unstructured data is difficult, update and delete operation becomes difficult, indexing and searching again is more complex operation is required to implement to perform this indexing and searching. Okay, so everything become difficult in case of unstructured data. And then last type is semi-structured data. Semi-structured data means what? The data which is available in structured as well as unstructured format. Such type of data is semi-structured. Semi-structured है ना, ऐसा डेटा कि उसका कुछ पार्ट स्ट्रक्चर्ड में है और कुछ पार्ट अनस्ट्रक्चर्ड में है, ऐसे डेटा को हम बोलेंगे सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा pertains to the data containing both the formats mentioned above, that is structured and unstructured. ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा कैन नॉट बी स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स एज इन द डेटाबेस
So semi structured data का कुछ parts unstructured format में होने वाला है, तो it is clear that कि we cannot store the unstructured semi structured data in database. Database में पूरा structured database data ही store हो सकता है. हाँ, लेकिन ये जो सेमी स्ट्रक्चर डेटा है उसका कुछ पार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, कुछ पार्ट अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर डेटा. ठीक है. सो एग्जांपल दिया है यहाँ पर. ईमेल ईमेल जब आप सेंड करते हो तो उसमें कुछ पार्ट है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है और कुछ पार्ट होता है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में. जैसे अगर मैंने मेल अगर किया किसी को, तो ईमेल आईडी का मींस आप जब ईमेल करते हो तो पहले आपको ऊपर से कंपोज पे क्लिक करने के बाद किसको मेल भेजना है, ठीक है, सीसी में क्या रखना है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है ईमेल का, ठीक है. तो इसको इस डेटा को प्रॉपर स्ट्रक्चर है, लेकिन आप एक्चुअली जो मैसेज सेंड कर रहे हो, अटैचमेंट भेज रहे हो, वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है. तो ईमेल इज गुड एग्जांपल ऑफ सेमी स्ट्रक्चर डेटा, क्योंकि ईमेल जब आप सेंड करते हो तो ईमेल कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है. डेटाबेस में नहीं बोल सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका डिटेल स्टोर हो रहा है, ईमेल का डिटेल्स. ईमेल कौन से टाइम पे कौन से ईमेल आईडी से किस ईमेल आईडी को भेजा गया है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या था ईमेल का और एक्चुअल कंटेंट क्या है. तो ये सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगा. तो उसमें से ईमेल आईडी किसने भेजा है, किसको भेजा है, सब्जेक्ट क्या था, ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है और एक्चुअल कंटेंट जो है वो अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में है. अटैचमेंट अगर आपने कुछ भेजा है तो अनस्ट्रक्चर डेटा है. Just a minute, students. Okay. So email is a good example of semi-structured data. Your HTML program is a good example of semi-structured data. HTML program, XML program. ठीक है. हमने यहाँ पे HTML प्रोग्राम में प्रोग्राम तो अरेंज करते हैं इन द फॉर्म एट्रीब्यूट्स, सॉरी इन द फॉर्म ऑफ टैग्स, ठीक है. तो हर एक टैग का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. सपोज जस्ट मिनट स्टूडेंट, जस्ट मिनट. हेलो. ठीक है. सो ईमेल, HTML प्रोग्राम, XML प्रोग्राम, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा. सो डेटा जो स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों फॉर्मेट में अवेलेबल है, ठीक है. सच टाइप ऑफ डेटा इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है. सो हियर वी कंप्लीट विद द टॉपिक टाइप्स ऑफ डिजिटल डेटा. डिजिटल डेटा के तीन फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड, ठीक है. एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? Any doubt? Yes or no? No, sir. So tomorrow No, we'll sir. discuss about big data analytics and then applications of big data, and then we'll complete with this particular chapter. So probably in next lecture we'll try to complete this chapter. Okay. So we'll stop today. For today, do not leave the meeting. Give me the attendance. Okay. Pimpri roll number 1 to 10. Put your roll number in chat box.
21 to 30. 30 to 40. 41 to 50. 50 to 60. 60 to 70. 70 to 80. 80 to 90. 90 to 100. 100 to 110. 110 to 120. 20 to 30. 120 to 130. Okay. Saurabh. Akudi 1 to 10. Akudi 11 to 20. Okay. Okay. Bye, students. Leave the meeting and join the next lecture.